जी, AWS auto scaling. So AWS auto scaling is a new AWS service that helps you optimize the performance of your application while lowering the infrastructure cost by easily and safely scaling multiple AWS resources. It simplifies the scaling experience by allowing you to scale collections of related resources that support your application with just few clicks. AWS Auto Scales helps you configure consistent and configured scaling policy across your infrastructure stack, backing up your application. AWS scaling will automatically scale resources as you need to align a selected scaling strategy, so you maintain performance and pay only the resources you actually need. So basically, if you just focus here, AWS scaling will automatically scale resources as you need it to align your selected scaling strategy, so you maintain performance and pay only for resources what you actually need. So होता क्या है कि अगर मैं एक केस स्टडी हम ले लें तो उसमें हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी कि मिसाल के तौर पे कि आपके पास यूजर्स हैं, ठीक है ना, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? तो मिसाल के तौर पे कि आपके पास एक वेबसाइट है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और उस ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर डेफिनेटली यू आर स्पेंडिंग इन बजट टू ग्रो अप दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, जो भी आपकी एप्लीकेशन है या कुछ भी हो सकता है, कोई गेमिंग हो सकती है या शॉपिंग हो सकती है, व्हाटएवर. So, but for the whatever the resources you currently have, जो उनकी आपके पास जो resources हैं वो आपने यकीनन उस हवाले से ही परचेज की हुई होंगी कि जितनी आपके पास उसका लोड होगा, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल कि अगर उसके एप्लीकेशन पे डेली के 500 यूजर्स आते हैं, so you have the optimal resources to manage those 500 users, but same time you are investing on your marketing budgets as well, and it is in your wish list, and you are trying to increase the revenue as well as the daily visitors as well, right? So as your visitors start growing, so at one time it will happen that your the resources of your EC2 और जो भी आपके होंगे उनकी वो कम पड़ जाएंगी और आपके नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूजर्स बढ़ जाएंगे, एंड देन योर स्टार्ट हैविंग द परफॉर्मेंस इश्यूज. am I clear? मतलब मैं मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्रिसमस के ऊपर या फिर ब्लैक फ्राइडे के ऊपर ये सेल्स अचानक से बूस्ट हो जाती हैं, राइट? और आपने अपना मार्केटिंग बजट भी एलोकेट किया होता है, तो अब उसमें कितनी बूस्ट हो जाएगी, कितना इंक्रीज हो जाएगा, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, बट इट विल बी गेट इंक्रीज एक्चुअली. सो उसके ऊपर अगर हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी, अगर आप पहले से रिसोर्सेज इंक्रीज करके रख लेंगे तो मे बी यू स्पेंड मोर अमाउंट ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर देन एक्चुअली यू नीडेड इट, कि शायद आपने इतना खरीद लें कि जितना आपको ज़रूरत ही ना हो, एंड मे बी कि आप कम खरीद लें जितनी आपको ज़रूरत उससे ज़्यादा हो. तो ऑटो स्केलिंग में आपको क्या फ़ायदा होगा कि वो ऑटोमेटिकली एक स्केल अप करेगा, नंबर ऑफ EC2 रिसोर्सेज आपके बढ़ाता चला जाएगा, जबकि आपके जितनी आपको ज़रूरत होगी, ठीक है, डिफरेंट क्राइटेरियाज का. अगर नंबर ऑफ विजिटर्स आपके बढ़ गए तो उसके बाद नंबर ऑफ CPU यूजेज बढ़ गया तो वो आपके नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ा देगा. सो दिस इज हाउ इट विल कीप ऑटोमेटिकली स्केल अप द थिंग्स. आई होप आई एम क्लियर. कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? बहुत सिंपल सा केस स्टडी पेश करने की कोशिश की थी मैंने. एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट? जी जी क्लियर है. ठीक है ना. तो आप पहले से rather than के you purchase the resources from the AWS before it happen, you make an such an policy कि वो automatically scale up कर जाए, right? अच्छा, auto scaling is a fast and easy way to optimize the question is what is the benefit of this auto scaling? So auto scaling is a fast and easy way to optimize the performance and cost application. Setup scaling quickly. Auto scaling provides you unified scaling experience for all scalable resources, powering your scale your resources, powering your applications.
and makes smart scaling decisions. This auto scaling let you automate the group of different resources to respond change in demand. वो quickly respond करते हैं, मिसाल के तौर पे कि CPU usage, number of network traffic वगैरह इसके ऊपर डिपेंड है. Easy to understand strategies let you choose the optimized availability in cost and balance in both. ठीक है. ऑटोमेटिकली मेंटेन परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस है जाहिर से आता है अगर जो इस व्हेन auto scaling continually monitor resources underlying your application to make sure that they are operating at the desired performance level. तो जो भी उसका मॉनिटरिंग क्राइटेरिया होगा उसके ऊपर मॉनिटर करता रहता है. एंड व्हेन डिमांड स्पाइक्स ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेंट रिसोर्सेज यू मे हैव. ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपने लोड बैलेंसर के पीछे 2 रिसोर्सेज लगाए हुए थे, EC2 लगाए हुए थे, लेकिन अब फौरन से स्पाइक आया किसी चीज के अंदर तो वो आप उसने रिसोर्सेज पीछे 2 के बजाय 3 सर्वर कर दिए, 4 सर्वर कर दिए. ठीक है, और फिर जब स्पाइक कम हुआ तो फिर दोबारा से 2 सर्वर कम कर दिए. ठीक है, तो ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है. एंड एंटिसिपेट द कॉस्ट एंड ओवर स्पेंडिंग, यानी कि आपने पहले से ही वो 2 के बजाय 4 सर्वर खरीद के नहीं, इंस्टेंसेस नहीं परचेज करके रख लिए थे, बल्कि आपने उसको एक ऑटो स्केलिंग पॉलिसी बनाएंगे. जब वो इस्तेमाल होना शुरू है तो वो आपको पॉलिसी चार्ज होना शुरू हो गया, जब वो इस्तेमाल होना बंद हो गए तो वो आपको चार्ज होना बंद हो गया. लाइक दिस. ठीक है. When should you start? You should use. When should you use auto scaling? You should use auto scaling if you have an application that use this one or more scalable resources experience variable load. ठीक है ना. A good example will be an e-commerce website application that receive the variable traffic through other day. It allows a standard 3-tier application, the auto scaling website and distributed incoming traffic. ठीक है ना. तो अगर जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन की एग्जांपल दे दी कि पूरे दिन में डिफरेंट मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ वर्कलोड होता है. फॉर एग्जांपल के योर वेब जो दिन का वक्त है उस वक्त आपके पास ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है और रात के वक्त कम हो जाता है. तो दिन के वक्त आपको हो सकता है 2 या 3 सर्वर्स चाहिए उस वर्कलोड को मैनेज करने के लिए, रात के वक्त ट्रैफिक कम हो जाता है. सो व्हाई यू आर पेइंग फॉर दिस additional servers, so you may shut down those things, so that can be a good option. ठीक है. So this is it for the concept basically. तो कैसे स्टार्ट करते हैं वो हम इसको अभी देखते हैं कि allows you to select application based on resources tags and cloud formation और different तरीकों से हम इसको. So any question till now? सो वेरी क्विकली हम जंप आउट कर जाते हैं अपने EC2 के अंदर, AWS के अंदर EC2 कंसोल में चले गए. EC2 कंसोल के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑटो स्केलिंग लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन आता है. ठीक है, इस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज़ कर सकते हैं अपने जो है ना उसके लिए ऑटो स्केलिंग के लिए. ठीक है, व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पर सर रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना साथ साथ, या अभी? जी जी बिल्कुल. जी जी. सो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के हम उसका कोई नाम दे देते हैं. ठीक है, और जैसे कि हमारे पास ठीक है. अब जब क्वेश्चन ये आता है कि ये जब ऑटोमेटिकली मशीन क्रिएट करेगा तो कौन सी मशीन क्रिएट करेगा. ठीक है, तो मशीन अगर जैसे हमने लिनक्स की सिंपल मशीन उसको एक बता दी तो उसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं. तो बैक टू दी अवर प्रीवियस क्लासेस के वहाँ पर हमने जिस तरह से एक मशीन कॉन्फ़िगर की थी अपाची और उसके अंदर हमने अपना तमाम वो चीज़ें रखी थी सर्विसेज वगैरह, तो उसके ऊपर हमने एक उसका एक AMI बना लिया था. तो उसके अंदर तमाम चीज़ें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं, राइट. तो जब उसके अंदर चीज़ें कॉन्फ़िगर्ड होती हैं तो फिर वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं जो कि लिनक्स वन के नाम से. तो अब एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी देयर. ठीक है, या तो हम मार्केट प्लेस से कोई चीज़ उठा सकते हैं या फिर हम अपने जो पहले से ज़्यादातर बेस्ट तो यही होता है कि हम जो हमारे पास पहले से बना हुआ सर्वर है उसके कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिका हम वहाँ से चीज़ें पिक कर लें. तो हमने एक ऑलरेडी अपनी एक AMI बनाई हुई थी जिसके अंदर अपाचे और एक पेज का एक
सर्वर 1 के नाम से शायद एक बना हुआ था उसके नाम, ठीक है। अब चूज इंस्टेंस टाइप जो है वो हमें चूज करना पड़ेगा, किस टाइप का ये इंस्टेंस होगा और किस तरह की वो कैटेगरी होगी ये जो उसके अंदर चूज करेंगे। तो वहां पर हम जाते हैं और इसको यानी ये एडिशनल एक सर्वर और बन रहा है अभी, ऐसे ही ये है तो हम ना? कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं उसको, अच्छा, ये सिर्फ हम बना कॉन्फ़िगरेशन। कुछ नहीं रहे, हम तो सिर्फ ठीक है। बता रहे हैं कि ऑटो स्केलिंग चलेगी तो उसके अंदर जब वो कैसे? कौन सा EMI लेगा, कौन सी मशीन बनाएगा, ये सब हमें उसको बताना पड़ेगा ना। खुद अपनी मर्जी से तो ये चीज़ें नहीं चॉइस करेगा, ये बताएगा कि हम बता रहे हैं कि विच EMI यू चूज एंड विच मशीन यू विल चूज। तो जो बेसिकली अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ तो EC2 जब हम इंस्टेंस बनाते थे तो एक वो चलता था, आपका विज़ार्ड चलता था, उस विज़ार्ड की सारी चीज़ें आप यहाँ पे पहले से ही बता रहे हैं आप उसको, ठीक है। राइट। हमने ये चूज कर लेते हैं, ठीक है। और एक इंस्टेंस टाइप चूज कर लिया, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन एंड जो है हम उसके हम कोई बता सकते हैं अगर कोई हमें उसको कोई IAM जो है हमें उसको कोई रोल देना है तो वो हम उसके साथ जो है ना वो एसोसिएट कर सकते हैं। इनेबल इंस्टेंस डिटेल मॉनिटरिंग विद इन क्लाउड वो कर सकते हैं यहाँ पे, और एनीथिंग एल्स, ठीक है। EBS वॉल्यूम हो गया, जो हम स्टोरेज बताते हैं हम उसको वो डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा मैं, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप जो है ना, क्रिएट एंड सिक्योरिटी ग्रुप आप क्रिएट कर लें, ठीक है, या सेकंड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। तो मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप AWS क्लास दिसंबर 20 के नाम से बना हुआ था, मैंने वो चूज कर लिया, ठीक है। और की पेयर दोबारा से वही कि चूज एंड की पेयर या क्रिएट अ न्यू की पेयर, तो मैंने जो पहले से बनाया हुआ था AWS क्लास दिसंबर 20 वो ले लिया, उसको एक्नॉलेज कर दिया। क्रिएट एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बन गई है, ठीक है जी। और फिर हम यहाँ पर आते हैं क्रिएट एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर जाते हैं, उसको हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है। और नाम देते हैं हम यहाँ पे माय ऑटो स्केल GRP, ठीक है। अब लॉन्च टेम्पलेट क्या होगा इस ग्रुप का, तो लॉन्च टेम्पलेट जो है वो स्विच टू, अच्छा लॉन्च टेम्पलेट आ रहा है यहाँ पे, हम आ रहा है स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, कैंसिल करता हूँ मैं इसको, ठीक है। और ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको इंस्टेंसेस और इंस्टेंसेस के नीचे आ रहे हैं लॉन्च टेम्पलेट्स। आप जिस तरह से मैंने अभी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बताई थी ना, इसी तरीके से हम लॉन्च टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। लॉन्च टेम्पलेट भी बिल्कुल सारी वही चीज़ें होती हैं जो कि आप जब कोई न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें जो सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा AMI होगा, कौन सा क्या चीज़ होगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे उसके अंदर आप बता देते हैं पहले से ही, ठीक है ना। उसको आपने टेस्ट और फिर इस तरह से जो है उसके अंदर AMI बता देते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा AMI होगा, ठीक है ना। और उस AMI वगैरह चूज करके और तमाम इंस्टेंस टाइप वगैरह, की पेयर, नेटवर्क लॉगिन वगैरह सारी चीज़ें आप उसके अंदर बता देते हैं। तो ये लॉन्च टेम्पलेट्स होते हैं, और टेम्पलेट्स को आप बाद में बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने इसको क्रिएट किया लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाएंगे दोबारा से, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, माय ऑटो स्केल GRP लॉन्च टेम्पलेट, सॉरी लॉन्च स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, तो माय ऑटो स्केल के नाम से जो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन आई थी वो मैंने यूज़ कर ली है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऊपर हमें स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। नेक्स्ट करते हैं, कौन से VPC में रहेगा, सब डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा मैं, ठीक है। और जो VPC हैं वो हम उसके अंदर जो है वो सारे जो उसके सबनेट्स हैं वो सारे ऐड कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब इसके अंदर यहाँ पर मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चल रहा हूँ। यहाँ पर हम जाके जो है नो लोड बैलेंसर है, अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर,
और अटैच टू अ न्यू लोड बैलेंसर। ठीक है, अब हम इसको जो मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे तो उसको हम किस तरह से करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम अटैच। नो लोड बैलेंसर कर सकते हैं, अटैच टू एन एग्जिस्टिंग कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग हम डिलीट कर सकते हैं, अटैच टू अ न्यू लोड बैलेंसर कर देते हैं। ठीक है, तो न्यू लोड बैलेंसर कर देंगे तो ये हमसे पूछा कौन सा, हमने कह दिया एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना दो। ठीक है ना, और लोड बैलेंसर का इसने कोई नाम दे दिया। ठीक है ना, और खुद से अगर आप चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे ए एल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। ठीक है, इंटरनल है कि इंटरनेट फेसिंग है, हमने कहा इंटरनेट फेसिंग है। ये सारी वो जो लोड बैलेंसर की सेटिंग थी वो ये हम अभी हमसे यही पूछा है, क्योंकि हम न्यू लोड बैलेंसर बना रहे हैं। अगर हम पहले से बना होता तो हम उसको रख लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे चेकअप की हुई हैं कि भाई ये सब यूज़ होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज़ की हुई। लोड बैलेंसर में क्या होता है कि पोर्ट 80 हम जैसे इस पे यूज़ कर रहे हैं, और जो है इसने डिफ़ॉल्ट राउटिंग फॉरवर्ड टू सेलेक्ट न्यू और एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप। जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में आपको याद होगा हम टारगेट ग्रुप्स क्रिएट करते थे, तो टारगेट ग्रुप जो पिछली क्लास में मैंने बनाया था सब डिलीट कर दिया था। तो क्रिएट अ न्यू टारगेट ग्रुप माय जो है ना वो इसका एक टारगेट ग्रुप बना लेगा। ठीक है, और ए एल पी जी आर पी मैं इसको करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से टारगेट ग्रुप बनाएगा। कोई टैग वैग लगाना है तो वो लगा दें, आप टैग लगा देते हैं कि पर्पस फॉर ऑटो। ठीक है जी, हेल्थ चेक कैसे होगा इसका, कि अब जब हेल्थ चेक जो है ना हमारा EC2 इंस्टेंसेस को हमें देखना होगा कि उसकी जो है ना वो आ रही होगा, या हमें उसको जो ELB को देखना होगा। तो हम उसके ऊपर हमने हेल्थ चेक थी ऑप्शनल है जो इसके अंदर, यहाँ पे हमने इसको ऊपर रख लिया है। इसको 300 सेकंड पे EC2 इंस्टेंसेस को वो देखता रहेगा, मॉनिटर करेगा। ठीक है, एडिशनल सेटिंग ऑप्शनल है कि इनेबल ग्रुप मैट्रिक्स कनेक्शन विद द क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर की डिटेल मॉनिटरिंग वगैरह के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, ग्रुप साइज ऑप्शनल है कि डिजायर्ड कैपेसिटी आपको कितनी रखनी है, मिनिमम। ठीक है ना, स्पेसिफाई द साइज ऑफ ऑटो स्केलिंग ग्रुप बाय changing the desired capacity. You can specify the minimum and the maximum capacity limit. Your desired capacity must be दी विद इन दी लिमिट रेंज। ठीक है, तो आपके पास जो एक होगा कि कम से कम तो इतने सर्वर जाने चाहिए और मैक्सिमम इतने जाए। ऐसा भी ना हो कि ऑटो स्केलिंग में किसी वक्त कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि 10-12 सर्वर्स क्रिएट हो जाएं जिसकी कॉस्ट इतनी आप चली जाए कि जो बेरेबल ना हो आपके लिए। गॉट इट, कोई ना कोई तो थ्रेशोल्ड होगा आपका भी बिजनेस का, और मिनिमम उससे कम तो जानी नहीं चाहिए कि ऐसा ना हो कि किसी सर्वर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई सर्वर डाउन हो जाए, शट डाउन हो जाए समथाउ, और वो 2 या 3 सर्वर आपको चाहिए और वो उससे भी कम चले जाए, और वो इवन के जो सबसे कम टाइम है, जिस वक्त सबसे लो आवर्स है, लो पीक आवर्स है, उसमें भी आप भी सर्व ना कर सकें। ठीक है, तो डिजायर्ड कैपेसिटी हम यहाँ पे 3 कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, मिनिमम कैपेसिटी हम इसकी यहाँ पे भी हम जो है यहाँ पे हम इसकी 3 ही कर देते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम कैपेसिटी हम इसको ले जा सकते हैं, हम इसकी 4 पे ले गए हम सपोजिटली। ठीक है, और scaling policy is optional. Choose whether your scaling policy dynamically resize or auto scaling grip meet the changes in the demand. तो अभी हमने 9 कर दिया टैग है। तो लेकिन अगर हम इसके अंदर यहाँ पर चूज करें तो फिर वो हमारे पास एक डिफरेंट पॉलिसी सेट लेकर आ जाता है। फिलहाल हम इसको नन ही रखेंगे। ठीक है, लेकिन जस्ट एक सीखने के लिए, समझने के लिए मैं सिर्फ क्योंकि यहाँ इन चीज़ों को शायद अभी मैं लैब इन्वायरमेंट में टेस्ट ना कर सकूँ, लेकिन ये एक बड़े मज़े की चीज़ें हैं यहाँ। ठीक है, इसको अगर आप समझें तो आप डिफरेंट वो उसके ऊपर जो चेंजेस हैं वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं विद डिफरेंट मैट्रिक्सेस। जैसे एवरेज CPU यूटिलाइजेशन। ठीक है, कि अगर आपकी CPU यूटिलाइजेशन 50% और जो इंस्टेंस नीड दी जो टारगेट वैल्यू है 50%, और वो 50% से इंक्रीज करती है तो फिर वो आपके पास फर्दर इंस्टेंसेस ऐड करना शुरू कर देगा। एवरेज नेटवर्क बाइट्स, एवरेज नेटवर्क आउट। ठीक है ना, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट पर काउंट। ठीक है ना, रिक्वेस्ट काउंट पर टारगेट। ठीक है ना, कि पर टारगेट सपोज करें कि
एक नंबर ऑफ थ्रेशोल्ड आपने रख लिया कि इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर हमने जैसे लास्ट क्लास में देखा था जो लोड बैलेंसर पे हम एक दफ़ा